مسلمان کی غلط فہمی. میں سمجھتا ہوں میں کر رہا ہوں, آپ سمجھتے آپ کر. تو السلام علیکم. ندیم ملک صاحب جو کہ سما نیوز کے اینکر ہیں, انہوں نے ڈاکٹر ذاکر نائک کا انٹرویو لیا اور کچھ سوالات کیے ان سے. میجر نشانی اینڈ آف دا ٹائم, مطلب آخرت کی کچھ نشانیاں بتاؤ, اور ان سے سوال کیے ہیں کہ ہم ٹیکنالوجی میں اور ہر ریاض سے مسلمان پیچھے کیوں ہیں اور ہر طرح سے مسلمان پھنسا ہوا کیوں ہیں. تو بہت ہی زبردست آنسر دیے ڈاکٹر ذاکر نائک نے, تو اس ویڈیو کو لازمی اینڈ تک لازمی دیکھیے گا آپ. روٹ میں دیکھیں تو وہاں صورتحال ہے. ساؤتھ ایشیا میں آ جائیں تو کہیں سیلاب سے تباہی ہے, کہیں وائرس نے تباہی مچائی ہوئی ہے. آر وی ہیڈنگ ٹورڈز دی اینڈ آف ٹائم؟ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین, اما بعد. رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آپ کا سوال ہے کہ آر وی اینڈنگ ٹورڈز اینڈ آف ٹائم, اور اسلامی نقطۂ نظریے سے کئی حدیثیں ہیں, اور اس کو کہتے ہیں دا سائنس آف دا اینڈ آف دا ورلڈ, اور کیا کہتے ہیں آخرت کے علامات, دا سائنس. اور اس سائنس کو دو پارٹ میں ڈیوائڈ کیا کہ مائنر سائنس اینڈ میجر سائنس. جو سائنس جو مائنر ہے اور جو میجر ہے. ایز فار ایز دا مائنر سائنس آر کنسرن, قرآن اور حدیث کی روشنی میں کئی ہے, تو کچھ اسکالرز نے اس سے کمبائن کیا, کوئی ڈیوائڈ کیا ہے. میں اس کے اوپر میرے فیس بک پہ کہا, میں نے مینشن کیا 87 مائنر سائنس, کچھ کہتے ہیں 60, کچھ کہتے ہیں 100, لیکن اس میں سیم ہے. کچھ لوگ کو دو کمبائن کر کے ہو جاتے, کچھ کو ایک سائنس جس میں 3 پارٹ ہے اس کو 3 میں ڈیوائڈ کرتے. تو فگر از امپورٹنٹ, لیکن کئی مائنر سائنس. تو میں نے میرے فیس بک پہ اس کے مائنر سائنس کو 87 میں نے کرایا, اور آل دیز آر مینشن ان صحیح حدیث اینڈ قرآن. کچھ جو ضعیف حدیث کے تو نکالا. تو اس کے اندر سے اکثر سائنس میں سے کچھ سے 60% سے زیادہ آ چکے ہو, 2/3 آف دی سائنس آف آلریڈی کم. ون آف دا ارلیسٹ سائنس ہے اللہ کے رسول جو آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ان کی پیدائش. دیٹ از ون آف دا ارلیسٹ سائنس آف دا اینڈ آف سائنس. جو آخری نبی ہے تو وہ بھی ایک سائن ہے, اور کئی سائنس ہے. اور جو میجر سائنس ہے اس میں 10 ہے, اور وہ سیکوینس میں آئیں گے, اور اس کو اختلاف میں 10 سائنس. اور وہ 10 کون کون سے؟ وہ پہلے مائنر سائنس میں سے کئی ہے, اس میں سے اینڈ آف دا مائنر سائنس میں مہدی السلام میں میجر سائنس میں نہیں آتے. اور جو میجر سائنس ہے اس کے اندر کمی وہ عیسیٰ علیہ السلام ہے. بعد میں اس کے اندر لائن سلائڈ, 3 لائن سلائڈ ہے, ون آفٹر دی ادر. اور پھر اس کے اندر یہ بھی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام گوگ اینڈ میگوگ, یجوج اور ماجوج, ان کا نا اور سے نہیں کہہ رہا ہوں میں, آپ نے سیلمنٹ, تو یجوج اور ماجوج کا نا. اور پھر اس کے اندر یہ بھی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے دجال ہے, گوگ اینڈ میگوگ, 3 لائن سائڈ یجوج اور ماجوج ان کا. اور پھر the sun will rise from the west. Then there will be a sweet wind that will kill all the others. Sorry, پہلے اس کے پہلے. And then this is just before the end of the world, the sun will rise from the west. تو اس طریقے سے 10 علامات ہیں. لیکن مائنر سائنس تو آپ نے کہا 2/3 تقریباً ہو چکے ہیں, 2/3 سے زائد. تو ابھی میجر سائنس کی طرف ہم نہیں پریڈکٹ کر سکتے جب مائنر سائنس کمپلیٹ ہو جائیں گے. 100% کمپلیٹ ہے. مہدی السلام اینڈ میں, تو مہدی السلام از ٹورڈ اینڈ آف دا مائنر سائنس. لیکن مہدی علیہ السلام کے ظہور کے متعلق ابھی کچھ کہنا بہت قبل از وقت ہے. جی ہم کچھ کہہ نہیں سکتے کہ وہ کب نہیں, ابھی تک تو وہ تو کئی لوگوں نے کہا کہ مہدی السلام ہے, لیکن وہ سب غلط ہے. تو لیکن یہ جو دنیا کے حالات ہیں یہ کس طرف کیا اشارہ کر رہے ہیں, ہم کس طرف کو جا رہے ہیں؟ آپ فلسطین یا جو اس وقت لبنان کی صورتحال ہے اس کو دیکھ لیں, ایون ساؤتھ ایشیا میں آ جائیں تو جو صورتحال ہے بہت زیادہ مسلمانوں کی ایسی صورتحال نہیں. تو یہ ہماری کیا نشاندہی کرتے ہیں, ہم کس طرف بڑھ رہے ہیں؟ یہ جتنے اللہ کے رسول ایک فرماتے حدیث کے اندر, ایک وقت آئے گا جو سب لوگ مسلمان پہ ٹوٹ پڑے. تو صحابہ پوچھتے ہیں کہ اس وقت مسلمان کم ہوں گے تعداد میں, تو اللہ کے رسول دینے مسلمان بہت تعداد میں رہیں گے, چھاپ کی طرح. دل بھی لائک فروت, بٹ they will love the دنیا and the world more and will fear death. یعنی وہ مال اور دنیا سے محبت کریں گے اور موت سے ڈریں گے, کہان جو کہتے ہیں. تو یہ حال ہے مسلمان کا. آج مسلمان تعداد میں more than 25% ہے,
और following is the number one in the world. There is no religion followed as much as by the Muslims. Christian in तादाद कहने के लिए, but most of them are atheists. They don't believe Jesus, in Jesus Christ and all. So तादाद में मुसलमान ज़्यादा है. माल के अंदर तो मुसलमान rich, we got the black gold, but yet we feel, आप देख रहे हैं कि मुसलमान सब जगह पीटे जा रहे और कुछ नहीं कर रहे. Because there is no unity among the Muslim ummah. अगर मुस्लिम उम्मा यूनाइट हुए और कुरान और हदीस पे अमल करेंगे तो इंशाल्लाह विल बी ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड. सर लेकिन मैं फ़लस्तीन में देखूँगा डॉक्टर साहब, तो फ़लस्तीन में मुसलमान अपनी जान कुर्बान कर रहा है, शहादत दे रहा है, तो वो मौत का खौफ तो उसे नहीं है. वो जो टैंकों के आगे बच्चे खड़े हो जाते हैं, उसको मौत का खौफ नहीं है. बेरूत के अंदर जो कुछ हमने देखा है वहाँ मौत का खौफ नहीं है. कश्मीर के अंदर वो जो बच्चा खड़ा होता है उसको खौफ नहीं है. तो लेकिन वहाँ अमन नहीं है. अमन क्यों नहीं? अमन उनके दिल में है. एक होता है एक्सटर्नल अमन, एक होता है इंटरनल अमन. आई फील इंटरनल अमन दे मोर देन अस. इंटरनल अमन मतलब एक औरत का अपना खुद का बेटा शहीद हो रहा है और वो अल्लाह से दरखास्त करते हैं आप 10 बेटे दो, वो भी आपके राह में कुर्बान हो, वो तो हाइट ऑफ अमन है कि नहीं. और जो उनको तो जर्जा मिले आखिरत में, वहां पर उनको क्या मिल रहा है. मैं तो हर रोज दुआ करता हूँ, हर रोज दुआ होती है, या अल्लाह मेरे माल और मेरी जान तेरे राह में कुर्बान हो जाए, हर रोज. तो सच्चा मुसलमान मौत से डरता है, वो सच्चे मुसलमान है. तो हम ये देख रहे हैं कि अल्लाह ताला जो गाजा में हो रहा है वो टेस्टिंग ऑल द ह्यूमन बीइंग्स इन द वर्ल्ड. सारे इंसानों का टेस्ट है, और जो पास हो रहे वो गाजा के लोग, हम फेल हो रहे. अल्लाह ताला ये दिखना चाहता आप क्या कर रहे गाजा के लिए, मैं क्या कर रहा हूँ गाजा के लिए, मैं कर रहा हूँ क्या नहीं, आप समझे, आप कर रहे क्या नहीं. तो अल्लाह ताला उनका रोल मेरे नजदीक वो 95% सब पास होने वाले और हाई नंबर से, हम 95-99% लोग फेल होने वाले. आप समझिए ना. सर मुसलमान दुनिया जो है डॉक्टर साहब, ओवरऑल थोड़ा सा मैं आपसे अगर कॉन्टेक्स्ट लूँ, फेलियर नहीं है लीडरशिप का मुस्लिम वर्ल्ड का. जो कुछ गजा में हो जाए हम कुछ नहीं कर सकते, जो कुछ लेबनान में हो जाए कुछ नहीं कर सकते, कश्मीर में हो जाए कुछ नहीं कर सकते, इराक में जो कुछ हुआ है हम कुछ नहीं कर सके, वेपन्स ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन पता नहीं कहाँ थे वो. फिर अफगानिस्तान के अंदर जो कुछ हुआ है दुनिया ने मजे से पढ़े बैठ के, वो यूएन की रेजोल्यूशन थी उनका करते रहो. नो सोल्यूशन मुस्लिम वर्ल्ड के पास तो हाल ही पे नहीं है. सोल्यूशन हमारे पास है, हम उस पर अमल नहीं कर रहे. सोल्यूशन है हमारे पास, हम अमल नहीं कर रहे. और एक चीज़ है कि वी शुड फॉलो इस्लाम एज अ होल, नॉट पार्टली. तो हर इंसान, हर मुसलमान समझता है मैं इस्लाम को मुकम्मल फॉलो नहीं कर. आप समझे ना, ये मुसलमान की गलत फहमी. मैं समझता हूँ मैं कर रहा हूँ, आप समझते आप कर रहे. तो अगर फॉलो कर रहे हैं क्या नहीं, वो देखना चाहिए अल्लाह के रसूल की सीरत और कुरान हदीस की रोशनी. हर मुसलमान अपने हिसाब से अगर पूछेंगे ना, वो समझता मैं 95% तो फॉलो करता हूँ, कर रहा है ना सिर्फ 5%. आप समझे ना. तो जो आदमी अगर गाजा के लिए बात करेगी, बाकी चीज फॉलो, नमाज में पढ़े क्या फायदा. आप समझे ना. तो देयर इज अ लेवल. तो आज की जो हालत है मुसलमानों की, वो हालत है क्योंकि हम कुरान और हदीस से दूर है. कुरान की आयत ये भी है, सूरह इमरान सूरह नंबर 3 आयत नंबर 54 में, दे प्लान एंड प्लॉटेड. कुफार लोगों ने प्लानिंग की और प्लॉट की, अल्लाह ने भी प्लानिंग की. अल्लाह इज द बेस्ट ऑफ प्लान. अगर ये 7 अक्टूबर को जंग शुरू हुई, जिस दिन इसराइल लोगों ने अगर कत्ल करना शुरू किए, अल्लाह ताला चाहता तो फलस्तीन को एक दिन में जिता सकता था कि नहीं. आज मुझे पूछेंगे कौन सा बेहतर है, एक दिन में जिताना कि 1 साल के बाद ये हालत है, ये बेटर है. डॉक्टर साहब लेकिन जो ये तबाही का रास्ता है मुसलमानों के लिए, हम तालीम में पीछे रह गए. आपको अभी ये जो लेबनान के अंदर या हिजबुल्लाह के ऊपर जो ब्लास्ट हुए हैं, डिवाइसेस कौन सी यूज़ कर रहे थे, वो जो इजरायली कंपनीज बनाई हुई हैं या उन्हीं मुल्कों के सप्लायर्स जो है उनको मुहैया कर रहे हैं, वो ब्लास्ट हुए, उनके लोग भी मारे गए. टेक्नोलॉजी के लिए हम उधर देखते हैं, जंग लड़ने के लिए हथियार उधर से देखते हैं, आपको जहाज चाहिए बमबारी करने के लिए जहाज उनसे आप खरीदते हैं. तो हम खुद मुस्लिम दुनिया क्या कर रहे हैं, हमने या दीन को फॉलो नहीं किया तो या हम जहालत का शिकार हो गए, कुछ हमने गलत काम किया. तो दीन को फॉलो करने के लिए हर आदमी सिलेक्टिवली फॉलो कर रहा है. हर मुसलमान सिलेक्टिवली फॉलो कर, दीन को मुकम्मल बहुत कम लोग फॉलो कर रहे हैं. आप समझे ना. और हर आदमी समझता है कि मैं कर रहा हूँ. अनफॉर्चुनेटली दीन को पूरा फॉलो करना चाहिए, सब करना चाहिए. नमाज भी पढ़ना चाहिए, पहले पिलर आते, अपने दिल में तौहीद होना चाहिए. अगर दिल में तौहीद ने नमाज ने फॉलो करा, बोलते कि मैं फिलिस्तीन की तकरीर है, क्या फायदा. आप समझे ना. जिस तरीके अल्लाह के रसूल ने कहा कि ये अलाउड है, इस्लाम में अलाउड नहीं है, ये करना चाहिए नहीं करना चाहिए, उसमें कई तफसील है. तो हम देखते हैं कि मुसलमान कुछ चीज़ सेलेक्ट कर ले. अभी जो आदमी बात कर रहे फिलिस्तीन को, बाकी चीज़ फॉलो कर रहे हैं क्या. अभी वो फिलिस्तीन जा नहीं सकता, बोलते मैं जान देने को तैयार हूँ.
नमाज पढ़ने 5 टाइम मस्जिद में जा रहे, जान देने को तैयार है, तो इट इज अ हिपोक्रेसी ऑफ आप समझे ना। तो आप देखेंगे अगर आप अगर मुकम्मल तौर पे फॉलो करेंगे दीन को, आप हमेशा खुश रहेंगे। देयर इज नो चांस ऑफ यू बीइंग सैड एट ऑल। डॉक्टर साहब, लेकिन जो मुस्लिम दुनिया टेक्नोलॉजी के मैदान में पीछे है, अब मेडिकल साइंस में जितनी नई इन्वेंशन है वो उधर से आ रही है, अद्वियात नहीं बन रही है उधर से आ रही है, वायरस के लिए वैक्सीन बन रही है ये बोलना कि टेक्नोलॉजी में पीछे है, मैं ये मानने को तैयार नहीं हूँ। यस, हम और आगे हो सकते हैं। अगर आप देखिए 8वीं सदी में, 7वीं 8वीं सदी में मुस्लिम ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड, बराबर। खराबी कहाँ से शुरू हुई? खराबी शुरू हुई, हम अपने कुरान और हदीस से दूर जाने लगे। जब साहबा थे, ताबाइन थे, तब ताबाइन थे, हम दुनिया पे टॉप पे थे, आप समझे ना। हम जब कुरान और हदीस को दूर करने लगे तो यहाँ हो रहा है हमारा। आज हमारे पास पैसा है, ब्लैक गोल्ड है, कह रहे सबसे रिचेस्ट लोग मुसलमान है, नॉन मुस्लिम। वो फोर्ब्स की लिस्ट के ऊपर जाओ मत, वो पूरी फिक्टिशियस है, मुस्लिम ना मच रिचर। द प्रॉब्लम इज दैट वी आर नॉट फॉलोइंग कुरान। आज के जो मुसलमान की हालत है वो हदीस में लिखी गई है। तो मेरे नजदीक मैं कहूँगा ये अल्लाह का प्लान है। क्यों मैं कहता हूँ कि दे आर बेटर ऑफ, क्योंकि आज की तारीख में इतने साल 75 ईयर हो चुके, बहुत से गैर मुसलमान को ये लगता था कि फलस्तीन गलत है। 90% लोग को, गैर मुस्लिम बात कर रहे हैं, और 10% शायद कहते थे बस फलस्तीन सही है, 90% कहते थे इजराइल सही है। अगर एक दिन में फलस्तीन जीत जाती थी, नो कंटिन्यू होते थे अपने ख्यालात पे। आज ये हिस्ट्री में पहली बार है कि जेनोसाइड इज बीइंग लाइव टेलीकास्ट। बहुत से जेनोसाइड पहले हुए, हिटलर ने भी किया, लेकिन वो सब जेनोसाइड के बारे में हमको फोटोग्राफ मिलते, सबूत मिलता है कई साल बाद, कई महीने बाद, कई हफ्ते बाद। ये दुनिया का सबसे पहला जेनोसाइड है जिसमें लाइव टेलीकास्ट हो रहा है। तो बहुत से गैर मुसलमान ये सोचते हैं कि कैसे लोग हैं फलस्तीन के लोग, उनके बच्चे का कत्ल हो रहा है और वो अल्हम्दुलिल्लाह कह रहे। हमारे लिए एक लेसन है। हम कुरान की आयत पढ़ते हैं, हदीस पढ़ते हैं, साहबा का ईमान क्या है आज तो नजर नहीं आता है। वो देखते हैं कि वो माँ का बेटा शहीद हो रहा है, बोलते 10 बेटे तो मैं शहीद कर लूंगी, तो क्या ईमान है उनका। तो हमें पता चलता है कि हदीस के बारे में साहबा का ईमान क्या था। तो हम जो फलस्तीन में हो रहा है वो हमारे लिए एक मिसाल है मुसलमान के लिए। गैर मुसलमान सोचते ये कैसा मजहब है, ये कैसा दीन है, जो लोग कंप्लेन नहीं कर रहे। तो ये एक दावती मैदान का सही मिसाल है, जहाँ तक कि उनका सबूत है। अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह मुल्क में सूरा नंबर 67 आयत नंबर 2 में, अल्लाज़ी खलक़ल मौत वल हयात, अल्लाह ने मौत और जिंदगी को पैदा किया है ये जानने के लिए कौन इंसान सबसे बेहतरीन है। तो ये जिंदगी एक टेस्ट है।